थोड़ा जान लेते हैं अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, देयर आर फ्यू स्टेटमेंट्स, 7 स्टेटमेंट्स आर हियर। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं मोरली एक्सेप्टेबल है या नहीं है, whether these are morally acceptable or not, मोरली सही है या नहीं है, आपको ये बताना है, राइट। Like first is regular safety training programs for all employees to equip them with the knowledge and skills to handle workplace hazards. Is it acceptable or not acceptable? Acceptable, sir. Acceptable? Yes? Yes, sir. Okay. Once Yes, sir, acceptable, sir. is the question, do you have to retain the facts of ILO factual data? No, not to retain. This is the old data, madam. That could have been updated now. But yes, we should understand. We should understand our response. ये data को इसलिए दिखाया गया है to know the actual figures that is happening at the workplace across globe. Not only in India, across globe, such kind of incidents are happening. So this is meant to make the managers understand their responsibility. That's it. The data we have shown to make you understand. If we are not going to not regular but weekly, yeah, we should stay updated about the stats and the alerts. जो भी global alerts हैं वो हमें update रहना चाहिए. That would be a point of lesson learning for us, that we can learn from other incidents and apply the corrective actions at our workplace. Definitely we should have a update, have an update about other other industries and the countries as well. होना चाहिए. No, the current affairs that is for your knowledge upgradation, but not in the answer writing. Your answer writing will be solely dependent on the scenario that will be given to you. जो सिनेरियो आपको दिया जाएगा उसी के बेसिस पे आपको आंसर बनाना है. We cannot assume anything from other external information or any kind of like news letters or something like that. Okay. So next statement is the manager has a reputation for being irritable and unapproachable, is only seen when arriving and leaving, and is occasionally abusive if interrupted. Noted. Providing PPE, such as helmets, gloves, safety goggles to ensure the physical protection of employees. Yes, sir. Yes, sir. Acceptable. Acceptable? Acceptable. There seems to be no firm statement of health and safety policy in the organization. Not acceptable. दोनों जाएंगे एक ही गाड़ी से. Yes, sir. बताएं. No acceptable, sir. Not acceptable. Okay. No. कंपनी के पास No acceptable. No acceptable. कंपनी के पास खुद का प्रॉपर पॉलिसी नहीं है. They don't have any health and safety policy, so not acceptable, right? Organization is Not experiencing regular incidents. Okay. ठीक है. Incidents हो रहे हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं किए जा रहे हैं, right? Not acceptable. Not acceptable. If workers have any health and safety concerns, they are comfortable talking to the managers as they know they will be heard. Acceptable. Yes, sir. Acceptable. Acceptable, sir. Acceptable. Correct. Managers वहाँ पे workers की बातें सुन रहे हैं और workers इसीलिए comfortably बात कर पा रहे हैं manager से, right? So Yes, sir. the point is, Yes, sir. these are some statements. These are some statements taken from the scenario. कुछ basic scenarios हमने कुछ statements लिए हैं. So now आप scenario पढ़ के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस सिनेरियो में क्या मोरली सही है या नहीं है. You can easily extract information from scenario. Yes, sir. Any doubts, please Yes, ask. sir. कुछ डाउट्स तो बोल सकते हैं. No doubt, sir. Okay, sir. No doubt. So we'll proceed. No problem. हाँ, तो हम यहाँ पे प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे. मोरल रीजंस पे बहुत से क्वेश्चंस आ चुके हैं. अभी तक टोटल 33 ओपन बुक एग्जामिनेशन हो चुके हैं. अभी तक टोटल 33 ओपन बुक एग्जामिनेशन हो चुके हैं जिसमें कि मोरल रीजंस पे क्वेश्चंस आते हैं, फ्रीक्वेंटली आते हैं. अभी तक 15 बार या फिर उससे ज्यादा आ चुका हो. सो यहाँ पे हम एक सैंपल सिनेरियो के बारे में बात करेंगे. आपको एक पीडीएफ दिया गया होगा. आपको एक
PDF दिया गया होगा, ऑल OBE क्वेश्चन पेपर। इसमें हमने यहाँ पे नेमिंग खुद किया हुआ है, ये नहीं था नेमिंग पहले, हमने बस आइडेंटिफिकेशन के लिए, इस सिनेरियो को जानने के लिए हमने यहाँ पे नेमिंग किया हुआ है। निबोश ने हमें पहले ये एक सैंपल सिनेरियो दिया था समझने के लिए कि सिनेरियो होता क्या है, उसको कैसे एड्रेस करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, उसके लिए एक सिनेरियो उसने दिया था। उसके बाद जितने भी एग्जाम्स हुए हैं OB नंबर 1 से लेके जितने भी OBs हुए हैं अभी तक, सभी OB से क्वेश्चन पेपर इसी फाइल में कंपाइल किए गए आपके लिए। OB नंबर 2, OB नंबर 3 हमने यहाँ पे नेमिंग कर दिया है, आपके लिए इजी रहेगा OB नंबर जानने के लिए, ठीक है। हमने यहाँ पे नेमिंग कर दिया है और ये फाइल आपको शेयर किया गया है, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास सिनारियोज हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे केस स्टडीज हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हम वहाँ पे कुछ चुनिंदा केस स्टडीज को लेंगे, कुछ स्पेसिफिक और सिनारियो को चूज करेंगे। हम जो टॉपिक कवर करते जाएंगे डेली बेसिस पे, हम डिफरेंट सिनारियोज को कवर करते जाएंगे, ठीक है। सो टुडे ओके सर, आई विल शेयर सर, डोंट वरी, आई विल शेयर द PDF सर। तो यहाँ पे एक सिनारियो है, सैंपल सिनारियो, इट इज अबाउट ए कार पार्किंग सिनारियो। ये बस हमने दिया है नाम जानने के लिए, सिनारियो में भी इसके बारे में दिया गया है। देखिए ये सिनारियो है, यहाँ से स्टार्ट होता है सिनारियो। उससे पहले हम जानेंगे कि इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडेंस टू लर्नर्स, आपको कुछ गाइडेंस दिया गया है यहाँ। सर आप क्या कोई आपका स्क्रीन शो कर रहे हैं? हाँ कर रहा हूँ ना। मुझे दिख नहीं रहा है, बस चार्ट मतलब। आप ये PDF फाइल दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है? सैंपल सिनारियो सभी को दिख रहा है? Yes, sir. हाँ सर दिख रहा है सर। अहमद सर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं क्या या लैपटॉप से यूज कर रहे हैं? मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ। नेटवर्क सही है आपका या नहीं, तो देखिए एक बार। कुछ मिसिंग है कहीं पे सर, थोड़ा डिले हो रहा है screen- लेकिन आ रहा है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। बीच में जाता है, ऐसा नहीं, मेरे पास भी जाता है, आता है। आप एक बार दोबारा लॉग इन करिए सर, बट प्लीज लॉग आउट सर, जस्ट लीव द क्लास एंड अगेन जॉइन सर प्लीज, दोबारा ट्राई करिए। सो दिस इज अ सैंपल सिनेरियो, गाइडेंस है आपके लिए, कुछ यहाँ पे कुछ गाइडेंस दिया गया आपके लिए। दिस इज एन ओपन बुक एग्जामिनेशन, जैसे मैंने बताया था आपको, ये आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन है, OBE है, ये ओपन बुक है। आप किसी भी स्टडी मटेरियल का या फिर किसी भी कोर्स नोट्स का, किसी भी HSC वेबसाइट का, गूगल का भी आप रेफरेंस ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उन वेबसाइट्स को, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को, टू प्रिपेयर आंसर, ठीक है। दिस एग्जामिनेशन इज नॉट इन्विजिलेटेड, यहाँ पे आपको कोई नहीं देख रहा है, ठीक है, नो वन इज वॉचिंग यू अराउंड, आपको फ्री हैंड दिया गया है। आपको यहाँ पे किसी भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का, स्टडी मटेरियल का आप हेल्प ले सकते हैं टू प्रिपेयर द आंसर। बाय सबमिटिंग योर कंप्लीटेड एग्जामिनेशन फॉर मार्किंग, यू आर डिक्लेयरिंग इट इज एंटायरली योर ओन वर्क। जब आप ये आंसर सबमिट करते हैं निबोश को, ये आप डिक्लेयर करते हैं, जब आप आंसर सबमिट करते हैं ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, जब आप वहां पे पेपर को अपलोड करेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपका पेपर एक सॉफ्टवेयर के द्वारा थ्रू किया जाएगा। दैट सॉफ्टवेयर इज टर्न इट इन, दैट सॉफ्टवेयर इज टर्न इट इन। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि माल प्रैक्टिस पकड़ता है, जो कि प्लैगरिज्म कंटेंट पकड़ता है। माल प्रैक्टिस दो टाइप के होते हैं, I'll again tell you, malpractice is of two types. One is your plagiarism. One is your plagiarism. Another one is your collusion. ठीक है। प्लेगरिज्म क्या है? आप किसी भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से रेफरेंस ले सकते हैं, गूगल कर रहे हैं, कुछ समझना है आपको, आप HSC के वेबसाइट से, ILO के वेबसाइट से कुछ सर्च कर रहे हैं समझने के लिए, और उसके बाद आप अपने ओन अंडरस्टैंडिंग से आंसर लिख रहे हैं, चलेगा। लेकिन आप HSC के वेबसाइट से, गूगल से, ILO से, किसी भी सोर्स से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड प्लैगरिज्म। आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, दैट विल कम अंडर मैलप्रैक्टिस। आपको बस रेफरेंस लेने के लिए बोला गया है, कंप्लीट उठा के डालने के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है। सेकंड इज कोलिजन। ये क्या होता है? अभी
वर्ल्ड वाइड एक ही पेपर रिलीज होता है, एग्जाम पेपर, ठीक है। आपका आंसर किसी और के आंसर से एज इट इज मैच कर रहा है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो वहां पे आपका माल प्रैक्टिस आ जाएगा, ठीक है। दैट इज ऑल कोल्यूशन। मतलब मान लेते हैं आप में से कोई दो लोग एग्जाम दे रहे हैं साथ में मिलके, आप दोनों का आंसर वहां पे मैच कर रहा है, एक पैराग्राफ मैच कर गया एज इट इज, आपका पैराग्राफ मैच कर गया, दैट इज कॉल्ड कोल्यूशन, दैट विल कम अंडर माल प्रैक्टिस, ठीक है। और इसके अलावा जब क्लोजिंग इंटरव्यू होता है उस समय भी हम माल प्रैक्टिस कैच कर सकते हैं। सो देयर आर 3 वेज टू कैच द माल प्रैक्टिस। तो जब आप IG1 का पेपर सबमिट करते हैं तब आपका वो पेपर एक सॉफ्टवेयर के द्वारा थ्रू वो एक बार स्कैन होता है, दैट सॉफ्टवेयर कैचेस इमीडिएटली। मैं कैच करता हूँ, उनके पास तो अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, दे कैन कैच इट इमीडिएटली कि आपने कहां से कौन से सोर्स से क्या कॉपी किया है, क्या कट पेस्ट किया है, दे कैन इजीली कैच, ठीक है। बहुत सारे माल प्रैक्टिस आ चुके हैं अभी तक, बार बार बोलने के बाद भी दे आर डूइंग द माल प्रैक्टिस एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस। सो वहां पे आप अब जब अपलोड करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर स्कैन करता है, यही बोला गया है। knowingly claiming work to be your own when it is someone else's work is malpractice which carries several penalties, ठीक है। आप किसी का आंसर कॉपी नहीं करेंगे या फिर किसी का आंसर आपके साथ मैच नहीं करना चाहिए, ना ही आप किसी इंटरनेट के सोर्स से कुछ भी इंफॉर्मेशन कट पेस्ट करेंगे, कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। आप समझेंगे और अपने खुद के लैंग्वेज से, आपने जो भी समझा खुद के लैंग्वेज से आपको लिखना है। The examination begins with a realistic scenario to set the scene. आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा समझने के लिए, ठीक है। You will then need to complete a series of tasks based on this scenario. तो इस सिनेरियो के बेसिस पे आपको आंसर ड्राफ्ट करना है, आपको सिनेरियो समझना होगा अच्छी तरीके से, और टास्क जो पूछा है उसके हिसाब से आपको इस इंफॉर्मेशन को लिंक करके, सिनेरियो से इंफॉर्मेशन को लिंक करके आंसर को सबमिट करना है, ठीक है। रैंडमली कुछ भी बाहर का इंफॉर्मेशन जो भी रेलेवेंट नहीं है उसको हम नहीं लिख सकते, मार्क नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। योर रिस्पॉन्सेस टू मोस्ट ऑफ दिस टास्क शुड होलली और पार्टली ड्रॉ ऑन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो। द टास्क विल क्लियरली स्टेट द एक्सटेंट टू व्हिच दिस इज रिक्वायर्ड। तो टास्क में दिया जाता है, टास्क में वहां पे लिखा रहता है, नोट में, यहाँ पे नोट में लिखा रहता है, you should support the answer where applicable using relevant information from scenario। कहीं कहीं पे लिखा रहेगा based on the scenario only। जहां पे लिखा है based on scenario only मतलब सिनेरियो से ही इंफॉर्मेशन लेना है आपको, इसके बाहर से आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। और जहां पे लिखा है you should support the answer where applicable in scenario, तो आपको मेजॉरिटी ऑफ द आंसर सिनेरियो से लेना है, और जो 1-2 पॉइंट होगा वो आप एजम्पशन ले सकते हैं। वो कैसे लेना है मैं बताऊंगा आपको आगे जाके, लेकिन वो कैसे लेना है मैं बताऊंगा आपको आगे जाके, लेकिन यहाँ पे आप एजम्पशंस ले सकते हैं, इररिलेवेंट पॉइंट्स आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक टास्क के बाजू में ब्रैकेट में मार्क दिया, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क का, 15 मार्क का, 20 मार्क का, 25 मार्क का, 5 मार्क का, यहाँ पे टास्क का मार्किंग्स यहाँ पे दिए जाते हैं, उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। 10 मार्क का टास्क है तो आपको 10 डिफरेंट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने होंगे सिनेरियो से, ठीक है, ठीक है। द मार्क्स अवेलेबल आर शोन इन द ब्रैकेट्स टू द राइट ऑफ ईच क्वेश्चन और पार्ट ऑफ ईच क्वेश्चन। दिस विल हेल्प गाइड यू टू द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन योर रिस्पॉन्स, ठीक है। 10 मार्क का क्वेश्चन है मतलब आपको 10 पॉइंट लिखने होंगे। इन जनरल 1 मार्क is given for each correct technical point that is clearly demonstrated। तो आपको वहां पे हर 10 टेक्निकल पॉइंट लेने होंगे या फिर कीवर्ड्स लेने होंगे और उसको सिनेरियो के साथ लिंक करके एक्सप्लेन करना होगा। कैसे करना है मैं बताऊंगा आगे जाके, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बर्डन फील मत करिएगा। आपको शॉर्ट में आंसर कंप्लीट नहीं करना है या फिर सिंगल वर्ड आंसर, लिस्ट टाइप आंसर नहीं लिखना है जिसमें कि एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा कि आपने इस टॉपिक को सही में समझा या नहीं समझा, राइट। एग्जामिनर को समझाना है आपको, यस आई हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेल, और आपको प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करना, एक्सप्लेन करना अपना आंसर,
अपने खुद के लैंग्वेज से, अपने खुद के वर्डिंग से, ठीक है, दैट इज योर रिक्वायरमेंट। और ये आपका 100 मार्क का एग्जाम है, तो आपको 3000 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। आपका वर्ड लिमिट है 3000। आपका 100 मार्क का एग्जाम है, 3000 वर्ड्स के अंदर आपका वर्ड काउंट होना चाहिए। मैक्सिमम आप 3300 तक जा सकते हैं, 10% प्लस माइनस भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। तो आपका टोटल पेपर का वर्ड काउंट 3300 होना चाहिए। दैट मीन्स फॉर ईच मार्क आपको हर एक मार्क के लिए 33 वर्ड्स लिखने होंगे। 3300 फॉर 100 मार्क्स, फॉर ईच मार्क आपको 33 वर्ड्स लिखने होंगे। ऐसा नहीं कि काउंट करके लिखेंगे, वो हो जाएगा, नहीं, दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, हो जाएगा। ऐसा नहीं काउंट करके लिखना है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ऊपर नीचे तो होगा ही, वर्ड काउंट ऊपर नीचे होगा, दैट इज नॉट ए कंसर्न। द मेजर थिंग इज आपके आंसर का क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए। निबोस बोल रहा है कि वर्ड काउंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्वालिटी पहले देखता है निबोस, आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि नहीं किया। ये क्लियर है, गाइडेंस क्लियर है आप लोगों को, बताइए। क्लियर? क्लियर है सर। Okay, fine. So now we'll Clear come. sir, actually today हाँ सर, clear है प्रोफेसर, okay, but actually थोड़ा today network का issue है। नेटवर्क इशू। Yes, maybe tomorrow arrange करेंगे। चलेगा चलेगा, ठीक है सर। क्लियर? फाइन। सो विल कम टू सिनेरियो। एक बात करेंगे सिनेरियो के बारे में। सो दिस सिनेरियो स्टार्ट्स विथ यू आर ए न्यूली अपॉइंटेड हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर फॉर ए कंस्ट्रक्शन कंपनी। आपका यहाँ पे रोल दिया गया है, आप एग्जाम दे रहे हैं, आपका कुछ रोल दिया गया सिनेरियो में। आप क्या है, आप एक कंपनी के यू आर ए हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर फॉर ए कंस्ट्रक्शन कंपनी। आपका रोल क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर, न्यूली अपॉइंट किए गए हैं आप, ठीक है। यू वर्क इन द हेड ऑफिस which is a 2-story office building along with 20 other office based workers who administer construction contracts। आप कहाँ पे काम करते हैं, आप एक हेड ऑफिस में काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा प्रॉपर्ली, आप कहाँ पे काम करते हैं, हेड ऑफिस में काम करते हैं। दैट हेड ऑफिस इज ए 2-story ऑफिस बिल्डिंग, 2 महले का बिल्डिंग है वो। आपके साथ साथ और भी 20 वर्कर्स हैं जो कि ऑफिस में ही काम करते हैं, दोज हु एडमिनिस्टर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। One of these worker has impaired hearing। इन 20 वर्कर्स में से एक वर्कर ऐसा है जिसको प्रॉपर्ली सुनाई नहीं देता है, ठीक है, he has impaired hearing। An office-based contract manager who coordinates construction work, contracts and activities। एक ऑफिस में बैठता हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर भी है। There is one कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर जो कि ऑफिस में बैठ के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स को मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है ऑफिस में बैठ के। उसके अलावा 20 मोबाइल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इंक्लूडिंग एन ऑपरेशन मैनेजर हु ऑकेजनली विजिट द ऑफिस इन द व्हीकल्स। वहां पे और 20 मोबाइल वर्कर्स भी हैं। क्या मतलब है सर, मोबाइल वर्कर्स का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय दैट, विष्णु सर? टेम्पररी वर्कर। टेम्परेरी जो ऑफिस से बाहर जाके काम they are moving from one place to another, वही बोलते हैं आप? यस सर, राइट। they are working by in different location, कहीं कहीं पे बात करें। हाँ सर, जैसे सर पाइपलाइन वगैरह वर्क होता है तो आदमी इधर उधर मूव करता है, लाइक दैट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। so there are 20 मोबाइल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इंक्लूडिंग एन ऑपरेशन मैनेजर। इन वर्कर्स में से एक क्या है, आपका एक ऑपरेशन मैनेजर भी है, राइट, वो ओकेजनली विजिट द ऑफिस इन द व्हीकल्स। वो कभी कभी हेड ऑफिस जाता है, लेकिन वो जनरली साइट पे काम करता है, ठीक है। द ओपनिंग आवर्स ऑफ द ऑफिस आर फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द वर्क। अभी जो ओपनिंग आवर्स है ऑफिस को फ्लेक्सिबल है, जब जरूरत पड़ेगी काम के लिए आपको बुलाया जाएगा, आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, ठीक है, आप कभी भी आ सकते हैं। जो ओपनिंग आवर्स है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक।
Yes, sir. The contracts manager has a reputation of for being irritable and unapproachable, is only seen when arriving and leaving, and is occasionally abusive if interrupted. जो ऑफिस से बैठता है, that contracts manager, इसका बिहेवियर सही नहीं है, उसका रेपुटेशन सही नहीं है इस वर्क प्लेस पे, गाली गलौज करता है, थोड़ा चिड़चिड़ा है, अनअप्रोचेबल है, कोई अप्रोच करता है उसको नहीं सुनता है वो बंदा, ठीक है, दैट इज द बिहेवियर ऑफ दिस मैनेजर. और कभी कभी दिखता है जब आ रहा हो या फिर जा रहा हो, राइट, इज नॉट दैट विजिबल. The office building is in a business park. The office building is in a business park away from main traffic routes. Main traffic routes से बाहर है, एक business park के अंदर ऑफिस है. The office has its own on-site car park, but spaces are sometimes limited. ऑफिस का खुद का कार पार्किंग का स्पेस है, लेकिन स्पेस जो है कार पार्किंग का वो कभी कभी कम पड़ जाते हैं, right? When all of the allocated spaces are taken, some vehicles are parked across existing parked cars, blocking them in and making it hazardous to maneuver. क्या बोला जा रहा है, इस ऑफिस का खुद का कार पार्किंग का एरिया है, ठीक है, वहां पे कार पार्किंग के लिए स्पेस एलोकेट किए गए हैं, लेकिन कभी कभी स्पेस कम पड़ जाते हैं. क्यों कम पड़ जाते हैं? मान लीजिए वर्कर्स ने लाके अपना कार पार्क कर दिया, ठीक है, अभी बाकियों के लिए स्पेस नहीं है, बाकी क्या करते हैं, बाकी लाके अपना कार बाजू में पार्क कर देते हैं, बाकी लाके अपना कार्स बाजू में पार्क कर देते हैं, जिससे क्या होता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिससे रास्ता ब्लॉक हो रहा है, वहां पे मूवमेंट के लिए दिक्कत हो रही है, ठीक है, चलने फिरने के लिए दिक्कत आ रही है, वहां पे हजारस सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है. नो वन हैज असेस्ड द रिस्क इन द कार पार्क, बट किसी ने भी उस कार पार्क एरिया में रिस्क असेसमेंट हीरा वगैरह नहीं किया है, हजार्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं किया है, कंट्रोल्स अप्लाई नहीं किए. रिसेंटली ए नियर मिस ऑकर्ड इन द कार पार्क. रिसेंटली क्या हुआ, एक नियर मिस हुआ कार पार्क एरिया में, व्हेन ए डिस्ट्रैक्टेड कंस्ट्रक्शन वर्कर रिवर्स्ड देयर व्हीकल रेकलेसली, नैरोली मिसिंग ए फेलो कंस्ट्रक्शन वर्कर वॉकिंग टू देयर ओन व्हीकल पार्क्ड अपोजिट. अभी क्या हुआ, रिसेंटली एक कार पार्क एरिया में एक कंस्ट्रक्शन वर्कर डिस्ट्रैक्टेड था, कुछ और सोच रहा था, कहीं और खोया हुआ था या फिर मोबाइल यूज कर रहा था, कुछ भी हो सकता है. ही वाज डिस्ट्रैक्टेड, उसका ध्यान नहीं था, और वो क्या कर रहा था, व्हीकल को रेकलेसली रिवर्स कर रहा था, फास्ट वे में, या फिर वो मतलब क्या बोल सकते हैं, रेकलेसली मतलब हड़बड़ा के या फिर फास्ट वे में अपने कार को रिवर्स कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, बाजू से एक और वर्कर वहां से गुजर रहा था, वहां पे नियर मिस हुआ, बाल बचा, उनको उसको टक्कर हो सकती थी, लेकिन बाल वो बच गया. एज अ रिजल्ट देयर वाज एन एंग्री एक्सचेंज बिटवीन द टू ऑफ देम. दोनों के बीच में कहासुनी हो गई, थोड़ा कोल्ड वॉर हो गया, ठीक है. नाउ यू डिसाइडेड टू टॉक इनफॉर्मली विद सम ऑफ द वर्कर्स. आपका रोल क्या है यहाँ पे, व्हाट इज योर रोल? HSC. आपका यहाँ पे क्या रोल है सिनेरियो में, आप क्या है सिनेरियो में? सर सेफ्टी एडवाइजर. हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर. तो आपने डिसाइड किया कि आप कुछ वर्कर से इनफॉर्मली बात करें. इसका मतलब क्या है, इनफॉर्मली बात करने का मतलब क्या है? एनीवन? व्हाट इज इनफॉर्मली टॉकिंग, मतलब क्या होता है? फॉर्मली बात करना, इनफॉर्मली बात करना, डिफरेंस क्या है? अनऑफिशियली सर, अनऑफिशियली क्लियर नहीं है, प्लीज एनीवन? वर्बली जॉब रिलेटेड नहीं, उससे क्लोजली मिलकर फ्रेंडली उनसे इंफॉर्मेशन पास करना, सॉरी, सिंपल वे में साधारण तरीके से बात करना, वर्बली बात करना. वर्बली तो हम बात करते हैं, तो फॉर्मल में सकते, इनफॉर्मल. इनफॉर्मल में क्या इनफॉर्मल और वर्बल में क्या डिफरेंस होता है? सर आपस में जैसे कि म्यूचुअल हो जाए उसी तरीके से बात करना, जैसे कि दोनों में झगड़ा ना हो. नहीं ऐसा नहीं. सम आप बोले सम ऑफ द वर्कर्स, कुछ वर्कर्स से बात किया, इन्वेस्टिगेशन ना करें. क्या डिफरेंस है? फॉर्मल ऑर्डर, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, नो. The senior among workers, no ma'am, no.
letting them close them, making importance. No. Informal means randomly. आपके पास कुछ एजेंडा नहीं है बात करने के लिए, राइट? यू डोंट हैव एनी एजेंडा टू टॉक. आप जाके रैंडमली कुछ भी पूछ सकते हैं वर्कर से, बात कर सकते हैं. देयर इज नो टॉपिक डिफाइंड. लेकिन फॉर्मल क्या होता है? आपके पास प्री डिफाइंड एजेंडा होता है. जैसे आपको सेफ्टी कमेटी मीटिंग, उसका एजेंडा प्रिपेयर करते हैं पहले, सर्कुलर होता है, आप सर्कुलर करते हैं सर्कुलर्स, हाँ, वो डॉक्यूमेंटेड भी होता है. डॉक्यूमेंटेड होता है, करेक्ट. फॉर्मल मतलब आपके पास प्री डिफाइंड एजेंडा है और वो डॉक्यूमेंट भी किया जा रहा है. आपका वो जो भी मीटिंग हो रही है, फिर जो भी डिस्कशन हो रहा है, उसका आउटकम हम वहां पे रिटन फॉर्म में स्टोर कर रख रहे हैं. दैट इज अ फॉर्मल मीटिंग, फॉर्मल डिस्कशन. इनफॉर्मल क्या होता है कि आप बिना एजेंडा के रैंडमली कुछ भी वर्कर से पूछ सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं, राइट? आप रेगुलरली वर्कर्स से जाके 1-to-1 डिस्कस कर रहे हैं, कुछ भी रेगुलरली जाके आप बात करते हैं वर्क प्लेस में, आप उसको रिकॉर्ड करते हैं या फिर आपका एजेंडा होता है, नहीं होता है. दैट इज इनफॉर्मल टॉकिंग. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टॉकिंग. तो आपने डिसाइड किया नॉट एज अ फैक्टर, नो, स्पॉन्टेनियस और कैजुअल टॉक, हाँ वी कैन से दैट, यस. सो आपने वहां पे जाके वर्कर से कैजुअली या फिर बोल सकते हैं रैंडमली कुछ भी बातें की. They described previous near misses and minor collisions with vehicles reversing out of the spaces. Say that, yes. So आपने वहां पे जाके वर्कर से कैजुअली या फिर बोल सकते हैं रैंडमली कुछ भी बातें की. They described previous near misses and minor collisions with vehicles reversing out of the spaces into their vehicles and vehicles narrowly missing pedestrians. तो वहां पे वर्कर्स ने क्या बताया आपको? आपने जब बातें की वर्कर से, उन्होंने बताया कि पहले भी नियर मिसेस हो चुके हैं, पहले भी माइनर कोलिजन्स हो चुके हैं. जब व्हीकल्स रिवर्स कर रहे होते हैं स्पेसेस से, या फिर वहां पे माइनर कोलिजन्स होते हैं, या फिर नियर मिस भी होती है. जो भी चल के जा रहा है, पेडेस्ट्रियंस हैं, यानी पेडेस्ट्रियंस आर क्रॉसिंग बाय, वहां पे नियर मिस भी होता है और कभी कभी माइनर कोलिजन्स भी हो जाते हैं. दो व्हीकल्स के बीच में होते हैं कोलिजन्स, या फिर जो वर्कर्स हैं उनके बीच में भी कोलिजन्स हो सकते हैं. द वर्कर्स सेड दैट दे वुड नॉट रिपोर्ट दिस बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ बीइंग ब्लेम्ड. वर्कर्स ने बोला आपको कि वो उन नियर मिसेस को, उन कोलिजन्स को, उन एक्सीडेंट्स को रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें डर है कि मैनेजमेंट उन्हीं को ब्लेम करेगा. तो ब्लेम होने के डर से कोई भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है उस इंसिडेंट्स को, नियर मिसेस को. ऑल्सो no one listened to them or took any action. ना ही वर्कर्स की बातें किसी ने सुनी, ना ही कोई एक्शन लिया गया, राइट? They also told you that there is no formal health and safety discussion between workers and managers. वर्कर्स ने आपको ये भी बताया कि वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में कोई भी फॉर्मल हेल्थ एंड सेफ्टी डिस्कशन नहीं हो रहा है, राइट? So in your role as a health and safety advisor, you would like to improve health and safety because you take your responsibilities seriously and want to make the workplace safer for everyone. तो आप न्यूली ज्वाइन किए हैं, आपको हेल्थ एंड सेफ्टी में ज्यादा आपका पैशन है, हेल्थ एंड सेफ्टी. आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से लेते हैं और आप चाहते हैं कि इस वर्क प्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव किया जाए. तो आपने जाके डिस्कस किया, आपने जाके उन दोनों वर्कर से डिस्कस किया जिन दो वर्कर्स के बीच में झगड़ा हुआ था, नियर मिस हुआ था, उन दोनों वर्कर्स से आपने बातें की, राइट, अबाउट द नियर मिस. और आपने जो ऑपरेशन मैनेजर था, आपने उससे भी जाके बात की, दोनों वर्कर से और ऑपरेशन मैनेजर से आपने दोनों से बातें की. यू आस्क्ड फॉर देयर ओपिनियंस, आपने उनसे उनका ओपिनियन मांगा, उनसे फीडबैक मांगा. द वर्कर हु वाज ऑलमोस्ट स्ट्रक बाय द रिवर्सिंग कार suggested that it would be safer if everyone reversed into car parking spaces. जिस वर्कर को चोट लगते लगते बचा, जो वर्कर चल के जा रहा था, जिसको चोट लग सकती थी, उस वर्कर ने बताया कि अगर हम कार को रिवर्स पार्क करेंगे तो निकालने में आसानी होगी. ठीक है, तो उन्होंने सजेशन दिया. द ऑपरेशन मैनेजर वाज लेस हेल्पफुल एंड सेड दैट देयर वाज नथिंग टू वरी अबाउट एंड दैट दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर इयर्स बट नो वन हैड एवर बीन सीरियसली हर्ट. जो ऑपरेशन मैनेजर था वो बोल रहा है कि चिंता की कोई बात नहीं भाई, सालों से ऐसा होता आ रहा है, कोई भी आज तक सीरियसली इंजर्ड नहीं हुआ, सो जाने देते हैं, लेट द वर्कर्स सॉल्व इट देमसेल्फ.
वर्कर्स के ऊपर छोड़ देते हैं, उनको सॉल्व करने देते हैं, आई विल नॉट गेट इन्वॉल्व। ऑपरेशन मैनेजर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहता और वर्कर्स को बोल रहा है कि आप खुद सॉल्व कर लो, ठीक है, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ सीरियस इंजरी नहीं हुआ है और सालों से ऐसा इंजरीज होते आ रहा है, तो ये नॉर्मल है, उसको नॉर्मल लग रहा है। द ऑपरेशन मैनेजर ऑल्सो सेड इट वॉज बेस्ट फॉर पीपल टू सॉर्ट इट आउट देमसेल्व्स। वो बोल रहा है कि अच्छा रहेगा अगर वो दो वर्कर्स अपने भीतर ही सॉल्व कर ले तो सही रहेगा। वर्कर्स टेल यू दैट outside of daylight hours, lighting levels in the car park are poor, right? Sometimes workers arrive and leave when it is dark. Workers ने आपको ये भी बताया कि जो कार पार्किंग एरिया में जो लाइटिंग है वो पुअर है, वहां पे लाइटिंग प्रॉपर्ली काम नहीं दे रहा है। ये ओपनिंग फ्लेक्सिबल ओपनिंग आवर है, यहाँ पे हमने देखा फ्लेक्सिबल ओपनिंग आवर है, वर्कर्स कभी भी आते हैं, कभी भी जा सकते हैं। तो जनरली कभी कभी वर्कर्स शाम में भी आते हैं और शाम में जाते भी हैं, तो उनके लिए दिक्कत होती है, ठीक है। फ्लड लाइट्स आर माउंटेड ऑन द ऑफिस वॉल फेसिंग द कार पार्क। वहां पे कार पार्क एरिया में फ्लड लाइट्स लगाए गए हैं, लेकिन फ्लड लाइट्स काम नहीं कर रहे थे। जो फ्लड लाइट्स हैं वो काम नहीं कर रहे थे। जो अभी नियर मिस हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, उस समय भी दोज लाइट्स वर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। अगेन नो वन हैड रिपोर्टेड दैट दिस लाइट्स वर नॉट वर्किंग, बट किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया इसके बारे में कि जो फ्लड लाइट्स है वो काम नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया। You have decided to review the commitment the company has made to worker health and safety. There seems to be no statement of general policy on health and safety. तो आपने डिसाइड किया, उसके बाद आपने चाहा ये देखना कि कंपनी का कमिटमेंट कैसा है, कंपनी ने क्या कमिटमेंट लिया है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके। तो आपको कहीं पे भी हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉलिसी के बारे में पता नहीं चला, कहीं पे भी आपको सेफ्टी पॉलिसी का स्टेटमेंट नहीं मिला। जो आपका 1 पेज का होता है स्टेटमेंट जो आप डिस्प्ले करवाते हैं नोटिस बोर्ड पे, वो नहीं मिला कहीं पे भी। द पॉलिसी इज नॉट डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड्स। आपने कंपनी का इंटरनेट भी सर्च किया, आपको पॉलिसी वहां पे भी नहीं मिला। आपने उसके बाद यू आस्क्ड द कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर अबाउट दिस। जो यहाँ का हेड है, जो आपका हेड ऑफिस का मैनेजर है, उससे आपने पूछा। वो बोल रहा है, द मैनेजर इज सेइंग दैट, इसने रिप्लाई किया कि द पॉलिसी इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड इज ओनली अवेलेबल इफ नीडेड फॉर थर्ड पार्टीज। द कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर इज आंसरिंग कि पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और बस थर्ड पार्टी के लिए ही अवेलेबल है, राइट। नन ऑफ द वर्कर्स नो व्हाट ए स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी लुक्स लाइक। किसी भी वर्कर्स को कुछ भी पता नहीं, राइट। You tell the manager that the company is breaking health and safety law. आपने बोला कि कंपनी हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ को तोड़ रही है, पॉलिसी को डिस्प्ले ना करवा के, कम्युनिकेट ना करके लॉ को तोड़ रही है। Due to that seriousness of the recent car park near miss and health and safety policy issues, you insist that a health and safety committee meeting should be held as soon as possible. तो आपने देखा, आपने इन्वेस्टिगेट किया था पूरा, तो आपने देखा पॉलिसी नहीं है, वर्कर्स को पता नहीं है पॉलिसी के बारे में, नियर मिस रिपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं, अभी एक रिसेंट नियर मिस भी हो गया, इंसिडेंट्स हो रहे हैं बार बार। तो आपने सोचा कि एक हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी मीटिंग फॉर्म एक कंडक्ट की जाए। वी शुड कंडक्ट वन हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी मीटिंग, राइट। यू हैव आस्क्ड द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर एंड द ऑपरेशन मैनेजर टू अटेंड। आपने उन दोनों मैनेजर्स को अटेंड करने के लिए पूछा, दोनों ने एग्री किया, बोथ देम एग्री एज The last health and safety committee meeting was over a year ago. क्योंकि पिछला health and safety committee meeting 1 साल पहले किया गया था। So this is the scenario. So what is your view about this scenario? आपका क्या व्यूज है सिनेरियो को लेके? शॉर्ट में बताएंगे आपका क्या व्यूज है? समझ में आया सिनेरियो आपको सभी को? Everybody understood scenario? Yes, sir. Right? What is your view about this scenario? कैसा व्यू है आपका, बताइए क्या व्यूज है आपका सिनेरियो को लेके? पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉर्मल, कैसा है? रवि यादव सर, हैप्पी सर। Very much negative, sir. Negative, very much negative. So Yes, sir. what will do? Kumar, Positive. some- आकाश राज जी बोल रहे पॉजिटिव है,
Okay, what is positive in this scenario, sir? हाँ, आकाश sir, what is positive in this scenario? एक ही चीज पॉजिटिव है, बाकी सब तो नेगेटिव लग रहा है मुझे। हाँ, पॉजिटिव कहाँ लगा आपको Yes, बताइए? what is, आकाश राय जी बताइए कहाँ पे पॉजिटिव लगा आपको? Sir, I think वो Ajay, reply करेंगे। Ajay, अजय कुमार से बताए। सर सेफ्टी सुपरवाइजर का जो भी कंसर्न है वो पॉजिटिव लगा हमें, और बाद बाकी जो चीज है वो नेगेटिव लगा। एडवाइजर है, नॉट सुपरवाइजर सर, एडवाइजर है। यस, एडवाइजर एज वेल। That is the only person who was positive in this scenario. Otherwise, everything is negative. Right? नेगेटिव। हाँ, तो यस सर। हाँ, आकाश जी आप अगर बोलेंगे सेफ्टी एडवाइजर फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब थोड़ी है कि कंपनी का कल्चर पूरा पॉजिटिव है। कंप्लीटली नेगेटिव सिनारियो है। द सिनारियो इज कंप्लीटली नेगेटिव। सेफ्टी एडवाइजर वाला उसको ठीक करना चाहता है। आप न्यूली अपॉइंट किए गए हैं, आप पहले से नहीं है, आप न्यूली अपॉइंट किए गए, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसको हाईलाइट किया एडवाइजर मैंने। सर पॉजिटिव रहेगा सर। सॉरी, सेफ्टी एडवाइजर तो सर पॉजिटिव रहेगा ना सर। अगर वो भी नेगेटिव हो गया तो फिर कंपनी कैसे चलेगी? आप न्यूली अपॉइंट एडवाइजर उसको तो अपना रोल अगर करता है तो आप न्यूली अपॉइंट किए गए हैं। उससे Yes. पहले आप जो कल्चर है पूरा का पूरा नेगेटिव है। नोबडी इज फॉलोइंग हेल्थ एंड सेफ्टी। तो यहाँ पे सर एक क्वेश्चन दिया गया है टास्क नंबर 1 पे। क्या हेडिंग है इसका? डिस्कसिंग मोरल रीजंस फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। दिस इज द हेडिंग। ये अभी जो आज टॉपिक कवर किया मोरल रीजंस पे, उसी का टास्क है, बाकी नहीं है। ये सब बाद में कवर करेंगे। आज का टास्क ये है। क्या पूछा सर क्वेश्चन में? क्वेश्चन है, यू हैव बीन आस्क्ड टू चेयर द हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी मीटिंग। आपको बोला गया कि आप उस कमिटी मीटिंग को चेयर करेंगे। यू आर द चेयर पर्सन ऑफ दिस हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी मीटिंग। एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर आपको चेयर करने के लिए बोला गया। बिफोर द मीटिंग you decide that you will open the meeting by reminding everyone of moral expectations of health and safety. तो मीटिंग से पहले आपने डिसाइड किया कि मैं उन दोनों मैनेजर्स को याद दिलाऊंगा, उनको रिमाइंड करवाऊंगा कि उनका हेल्थ एंड सेफ्टी के टुवर्ड्स क्या क्या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। राइट? क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रिपेयर नोट्स ऑन द मोरल आर्ग्यूमेंट्स। प्रिपेयर नोट्स ऑन द of the moral arguments you will use at the meeting. आप उस मीटिंग में कौन से पॉइंट्स पे मोरली आर्ग्यू करेंगे, मतलब आप उनको रिमाइंड करें, आप उनके साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे ये सही नहीं हो रहा है। इन दैट मीटिंग यू विल आर्ग्यू ऑन द मोरल ग्राउंड। आप उन दोनों मैनेजर्स को के साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे। आप उनको बताएंगे कि ये सभी चीजें मोरली सही नहीं हो रही है। तो व्हाट आर द पॉइंट्स? आपको सिनेरियो से 10 पॉइंट्स निकालने हैं जो कि मोरली सही नहीं हो रहे हैं। दैट इज मोरली नॉट एक्सेप्टेबल। क्लियर है क्वेश्चन सर एवरीवन? यस सर। yes sir, क्लियर? रिकमेंड नहीं करने हैं, आपको कमेंट करना है। Yes, sir, आपको clear. note बनाना है। आपको ये नहीं बोलना है कि ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। आपको कमेंट करना है कि ये नहीं है। राइट? नेगेटिवली कमेंट करना है बस। मोरली क्या सही नहीं हो रहा है सिनेरियो में, आपको बस आइडेंटिफाई करना है। हो जाएगा? यस सर।